نماز فجر کے بعد یہ ایک نام یا سابقو، سب پر سبقت لے جانے والے، اس وظیفے کو صبح اٹھ کر پڑھ لو گے تو رب ذوالجلال رات تک آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ خدا کی قسم یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، جب آپ لوگ اس کمال کے عمل کو کر لیں گے تو اللہ پاک سب پر سبقت دے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں آپ کی جیب میں دولت رکھنے کی جگہ ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا، اور یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لے کر آئے گا کہ اگر آپ رات دن دولت بانٹنے پھرو گے تو بھی دولت ختم نہ ہو پائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھ لو گے تو رب ذوالجلال آپ کی زندگی کو امن اور سکونتی کا گہوارہ بنا دے گا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، میری بہنوں، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کی پریشانی میں گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ ٹینشن میں، مصیبتوں میں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ دولت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی، آپ کے گھر کا پتہ پوچھے گی کہ یہ بندہ کہاں رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کی زندگی میں اگر پیسہ نہیں ہے تو آج اگر آپ غریب ہیں، فقیر ہو، یہ سمجھ لیں کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا اگر بھیکاری بھی اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لے گا تو یقین جانے غیب سے اتنا رزق عطا ہوگا کہ خالی جھولی بھی بھر جائے گی۔ لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں، ان آزمائشوں کو رضا بالقضا سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر جڑے، اجر و ثواب کی امید رکھے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اسے غیب سے وہ رزق عطا ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا، کیونکہ اس سورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق دیتا ہے کیونکہ یہ سورت رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی اور احکامات اور حاکمیت اور علم اور معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت اور ریاضت اور اخلاق حسنہ اور خصائل حمیدہ شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر روب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا اور تمہارے حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا، مشرق و مغرب، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ، کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
बारगाह खुदावंदी में अजमत व वजाहत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बहुत प्यारी दलील है। क्योंकि कुफ्फार ने जब आपका मजाक उड़ाया तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ से खुद जवाब दिया कि तुम्हारा दुश्मन ही अबतर है, हर खैर से महरूम है। और ये मोहब्बत की अलामत होती है कि अगर कोई महबूब पर एतराज करे तो मुहिब उसका जवाब देता है। जो शख्स इस सूरत का विर्द करेगा और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा तो अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए दुनिया और आखिरत में बहुत ज्यादा अजर व सवाब की बशारत दी है। अल्लाह पाक ऐसे शख्स को मरते वक्त कलमा नसीब करेगा, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से अमाल की लज्जत नसीब होगी, इसको नेकी की तौफीक नसीब होगी। हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ने से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। सूरतुल कौसर पढ़ना एक ऐसा अमल है कि जिसकी बरकत से अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी आफत व मुसीबत और सख्त से सख्त मुश्किल को दफा कर के आफियत व सलामती अता फरमाता है। और सूरतुल आले इमरान, ए ईमान वालों कह दो कि हमें अल्लाह ताला ही काफी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यह वजीफा इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से बड़ी आसानी से ये वजीफा पढ़ लेगा। ये वजीफा आपकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा लेकर आएगा, आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। आपके जो बुरे हालात हैं, बुरे दिन हैं, वो फौरन बदल जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे को मैंने जिस किसी को आज तक बताया उन्होंने ये वजीफा किया तो इनकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो गया। रातों रात इनकी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो गया। गरीब थे, रातों रात अमीर हो गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ना और तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफा इतना मुजर्रब, इतना आसान, इतना खास है कि अपनी जिंदगी में जो मेरे बहन भाई चलते फिरते अगर किसी एक दिन पढ़ते हैं तो अगले दिन उनका इंतजार करते हैं कि कब दिन आए और हम ये वजीफा पढ़ेंगे। नाज़रीन, आप लोग हैरान रह जाओगे कि अगर आप लोग इस वजीफे को अपनी जिंदगी में किसी भी दिन पढ़ लो तो आप लोगों के लिए सारी जिंदगी के लिए एक दिन का अमल काफी है। पूरी जिंदगी में अगर आप लोग सिर्फ एक मर्तबा भी ये वजीफा पढ़ लो, यकीन जानो तो आप लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग इस वजीफे को रोजाना पढ़ने की आप लोग तमन्ना करोगे। लेकिन इस वजीफे को आप लोगों ने रोजाना नहीं पढ़ना, इस वजीफे को थोड़ा वक्फा दे के पढ़ना है। क्योंकि बाज दौलत अगर आ जाती है तो वो दौलत भी गुमराही का सबब बन जाती है। तो लिहाजा आप लोगों ने इस वजीफे को आराम आराम से पढ़ना है ताकि आप लोग की जो गरीबी है वो आराम आराम से दूर हो, वरना तकब्बुर भी इंसान के अंदर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये वो वजीफा है जो गैब के खजानों को जाहिर कर देगा, जो बंद तालों को खोल देगा, जो आपके लिए रस्तों को आसान फरमा देगा, आपकी जिंदगी में पैसे को खींच कर लेकर आएगा, आपके लिए इज्जत बाइज़ शरफ बना देगा। हर बंदा आपको इज्जत की निगाह से देखेगा, छोटे बच्चे भी आपको सलाम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा इज्जत भी देता है, ये वजीफा दौलत भी देता है, ये वजीफा अजमत भी देता है, ये वजीफा सबकत भी देता है। क्योंकि ये जो नाम है या साबिकू, ए सब पर सबकत ले जाने वाले, यानी के नेकियों में आगे बढ़ने वाले। और ये जो तर्जुमा है, ये जो कुरानी आयत है, सूरह वाक़िया आयत नंबर 10 और 11 में भी हमें ये नाम देखने को मिलता है, या साबिकू। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने आज के इस दिन आप लोग इस वजीफे को कर लें और कोशिश करें कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार इस वजीफे को करें, रोजाना मत करिएगा। ताकि आप लोग जब रोजाना करेंगे तो ये वजीफा यकीन जाने नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने गुमराह होते देखा है कि दौलत उनके पास आई और अपनी असलियत भूल गए। अल्लाह पाक ने जो उन पर नेमतें अता करी उस पर उन्होंने अकड़ा और उन्होंने गुरूर करा तो रब ने उनको गुमराह कर दिया। कि आप लोगों के सामने नमरूद, फिरौन, शिद्दात, बेहद बहुत सारी आपके सामने जो है वो मिसालें मौजूद हैं। तो लिहाजा इस अमल को ज्यादा नहीं पढ़िएगा। आप लोग इस वजीफे को रोजाना नहीं पढ़िएगा, एक दिन छोड़ के पढ़िएगा। यकीन जाने आप लोग किसी भी मुल्क से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, दुबई, मलेशिया, पूरी दुनिया, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
किसी भी घर में है, किसी भी आप लोग जगह पे बैठ के इस वजीफे को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसी दिन से आप लोग इस वजीफे को एक दिन छोड़ के पढ़ना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी में ऐसा मौजज़ा होना शुरू हो जाएगा कि लोग भी हैरान रह जाएंगे। अमल की तरफ चलते हैं। वजीफा किस तरीके से करना है, उस वजीफे की तादाद को भी मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने ताऊज़ और तस्मिया पढ़ना है, 3 बार पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 1 बार हुआ, आपने 3 बार पढ़ना है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़िएगा। मैं बारहा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो दुरूद सब दुरूद पे सबकत ले जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हुसूल बरकत के लिए सवाब की नियत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसके बाद आप लोग सबसे पहले 1 मरतबा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर तीसरी मरतबा भी पढ़ लेंगे। 3 मरतबा जब आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो आपको 2-3 वज़ाइफ पढ़ने हैं एक ही साथ। मतलब पहले एक वजीफा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे आसान वज़ाइफ है, बहुत कम तादाद में समझ ले, 1-आधा मिनट के अंदर अंदर आप पूरा अमल कर लेंगे। दुरूद शरीफ से लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ लें, और ये तमाम वज़ाइफ आप लोग इस वजीफे को पढ़ लें। 2-3 मिनट के अंदर अंदर आराम और सुकून से, बिल्कुल आराम और सुकून से आप लोग पढ़ लेंगे। आसान भी इतने हैं कि कोई छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। 1 मरतबा जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ ले, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, उसके बाद फौरन आपको जो पहला वजीफा पढ़ना है, बहुत ही आसान सा वजीफा है, बड़े मुजर्रब ये भी नाम है, या अल्लाहु या बासितु, ये आप लोगों ने पढ़ना है। या अल्लाहु या बासितु 1 बार पढ़े, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे या अल्लाहु या बासितु 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे या अल्लाहु या बासितु। ये वजीफा आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है, सिर्फ 7 बार आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। इन्ना फ़ैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर को पढ़ेंगे। और कितनी बार पढ़ना है सूरत कौसर को? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने सूरतुल कौसर को 11 मरतबा ही पढ़ना है। 11 मरतबा आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ेंगे। जब आप लोग 11 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ लें, यानी कि सूरतुल कौसर का जो अमल है, जो ये सूरत है, इस सूरह मुबारका को आराम आराम से ध्यान से, आराम से, कोई गलती ना हो। देखिए, ये वजीफा गलती नहीं करनी आप लोगों ने, गलती के बगैर इस वजीफे को पढ़ना है। आप लोगों ने सिर्फ 11 बार पढ़ लिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आप लोगों ने अमल करना है, या रज़्ज़ाक़ु या गनियो, या रज़्ज़ाक़ु या गनियो, या रज़्ज़ाक़ु या गनियो। अल्लाह पाक की ये 2 सिफातें हम इकट्ठा पढ़ेंगे। इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है, यानी कि 1 बार हुआ या रज़्ज़ाक़ु या गनियो, 2 बार हुए या रज़्ज़ाक़ु या गनियो। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 7 बार, कमी पेशी नहीं करनी। आप लोगों ने आराम से सिर्फ 7 बार पढ़ लेना है। उसके बाद जो चौथा वजीफा करेंगे वो है साबिकू, या साबिकू भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ साबिकू भी पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। यानी कि नेकी में सबसे आगे, यानी कि सब पे सबकत ले जाने वाला। बहुत सारे इसके मायने बनते हैं। इस नाम को आप लोगों ने पढ़ लेना है। साबिकू पढ़ लें या फिर या साबिकू पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है। यकीन करें, इसको सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ लें, आपकी जिंदगी अमन और सुकूनती वाली हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको अफजल बना देगा, दूसरों पर सबकत ले जाने वाला बना देगा। पूरे घर में आपकी ही नाम का डंका बचेगा, पूरे खानदान में आपके नाम का डंका बचेगा। ये ऐसा नाम है, ये ऐसा वजीफा है। फिर आप लोग दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, आपका अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह पाक से जो इल्तिजा करेंगे, जो मांगेंगे, मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आज का हमारा ये अमल आपको अच्छा लगा है तो अल्लाह पाक के कोई से भी 2 सिफाती नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।